हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन भगवान राम बुराई पर जीत करके लौटे थे। उन्होंने बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों की स्थापना की थी। उन्होंने रावण रूपी 10 बुराइयों का अंत किया था और इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आज एक दिन और है, आपको पता है, और ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि आज कौन सा डे है। दोस्तों, आज है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। समझे आप? देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं एक साथ। एक तो हमने अच्छाई पर बुराई की जीत की, और हमें दूसरा पक्ष ये भी है कि हम जब बालिका दिवस मना रहे हैं तो हमें हमारी बुराइयों को, उनके लिए जो हमारे मन में बुरी बातें हैं उनको हटाना है। जैसे कि बच्चे कुछ नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या, इन सबको हटा देना चाहिए। तभी हम रावण से राम की ओर हम अग्रसर होंगे। दोस्तों, रावण के 10 मुंह नहीं थे, 10 बुराइयां थी जिसका प्रतीक है। और आज हम में से यदि कोई राम बनना चाहता है तो हमें आज के दिन ये प्रण लेना होगा कि हम मात्र बालिका दिवस के दिन ही संकल्प नहीं लेंगे, हम हर रोज बालिकाओं के विषय में सोचेंगे और उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर वो अवसर देंगे जिसकी वो अधिकारी है। तो दोस्तों, आज हम जान लेते हैं आज के इस अवसर पर वो सारी बातें जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस से जुड़ी हुई है। पहले कब मनाया गया, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे मनाने के कारण क्या है। तो दोस्तों, आइए हम और आप बालिका दिवस को मनाने के कारणों को खोजते हैं, कब मनाया गया यह भी जानते हैं, और इसके उद्देश्य क्या, हम क्या प्रण लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मनाना ही किसी दिवस का इतिश्री नहीं है, उसमें छुपे हुए जो मर्म है उसको समझकर उनके ऊपर काम करना भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दिस इन इंग्लिश एंड देयर आफ्टर वी विल नो दिस इन हिंदी ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैनी कांग्रेस फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड गर्ल्स and the 2024 International Day of the Girl Child theme is Girls Vision for the Future. This year's theme conveys both the need for urgent action and persistent hope, driven by the power of girls' voices and vision for the future. Friends, today's generation of girls is disproportionately affected by global crisis of climate, conflict, poverty, and pushback on hard-won gains for human rights and gender equality. Too many girls are still denied their rights, restricting their choices and limiting their futures. Yet, recent analysis shows that girls are not only courageous in the faces of crisis but hopeful for the future. Every day, they are taking action to realize a vision of a world in which all girls are protected, respected, and empowered. But girls cannot realize this vision alone. They need allies who listen to and respond to their needs. With the right support, resources, and opportunities, and the potential of the world's more than 1.1 billion girls is limitless. And when girls lead, the impact is immediate and wide-reaching. Families, communities, and economics are all stronger.
our future brighter. Next, we will know it is time to listen to girls, to invest in proven solutions that will accelerate progress towards a future in which every girl can fulfill her potential. Friends, now we will know that some things about the vision and about the day of girl child. 5 game-changing solutions with and for adolescent girls. Do you know that investing in girls is not only the right thing to do for them, but it also brings positive impacts to their families, communities, and societies as a whole. Based on the priorities of young people worldwide for promoting adolescent girls' rights, there are 5 key solutions rooted in partnerships that can transform girls' lives and secure their futures. Friends, now we will know the background of International Day of Girl Child. In 1995, at the World Conference on Women in Beijing, countries unanimously adopted the Beijing Declaration and Platform for Action, the most progressive blueprint ever for advancing the rights of not only women but girls also. The Beijing Declaration in the first to specially call out girls' rights. On December 19, 2011, United Nations General Assembly adopted Resolution 66/170 to declare October 11 as the International Day of the Girl Child, to recognize girls' rights and the unique challenges girls face around the world. The International Day of the Girl Child focuses attention on the need to address the challenges girls face and to promote girls' empowerment and the fulfillment of their human rights. Adolescent girls have the right to a safe, educated, and healthy life, not only during their critical formative years, but also as they mature into women. If effectively supported during the adolescent years, girls have the potential to change the world, both as the empowered girls of the day and as tomorrow's workers, mothers, entrepreneurs, mentors, household heads, and political leaders. An investment in realizing the power of adolescent girls upholds their rights today and promises a more equitable and prosperous future, one in which half of humanity is an equal partner in solving the problems of climate change, political conflict, economic growth, disease prevention, and global sustainability. Girls are breaking boundaries and barriers posed by stereotypes and exclusion, including those directed at children with disabilities and those living in marginalized communities. As entrepreneurs, innovators, and initiators of global movements, girls are creating a world that is relevant for them and future generations. The 2030
2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by world leaders in 2015 embody a roadmap for progress that is sustainable and leaves no one behind, achieving gender equality and women's empowerment in integral to each of the 17 goals. Only by ensuring that right of women and girls across all the goals will we get to justice and inclusion economics that work for all and sustaining our shared environment now and for future generations. Friends, now 6 facts are for you. Nearly 1 in 5 girls are still not completing lower secondary and nearly 4 in 10 girls are not completing their upper secondary school today. Very disgusting subject, very variable, very varied subject today. Around 90% of adolescent girls and young women do not use the internet in low-income countries, while their male peers are twice as likely to be online. Right? Globally, girls aged 5 to 15 spend 160 million more hours every day on unpaid care and domestic work than boys of the same age. Adolescent girls continue to account for 3 in 4 new HIV infections among adolescents. Nearly 1 in 4 married, partnered adolescent girls aged 15 to 19 have experienced physical or sexual violence from an intimate partner at least once in their lifetime. That is very bad situation for the child girls in world. Even before the COVID-19 pandemic, 100 million girls were at risk of child marriage in the next decade. Very ideable, very worried subject that. And now over the next 10 years, up to 10 million more girls worldwide will be at risk of marrying at children because of the COVID-19 pandemic. That is the situation of girls, child girls in the world. Friends, now we will know all things in Hindi also. दोस्तों, जो हमने इंग्लिश में जाना, इसे हम हिंदी में भी जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम बालिकाओं के लिए कुछ करने की दिशा में कदम उठा सकें और क्या क्या वो योजनाएं हैं वो भी हम आज जानेंगे जो कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनके विकास के लिए चालू की गई है, शुरू की गई है। दोस्तों, एक चीज पुनः बता देता हूं, विजयदशमी जो दशहरे की आज हम खुशी मना रहे रावण का दहन करके, वह तभी सार्थक होगी जब हम हमारे अंदर के रावण को मारकर बालिकाओं के प्रति जो हमारी सोच है, कौन सी सोच, कुत्सित सोच, प्रदूषित सोच, उनको बाहर निकालकर बालिकाओं के सम्मान का एक नया रास्ता बनाएंगे। तभी हम रावण से राम की ओर बनने का एक स्वप्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। ये क्या है? इस वर्ष का विषय जो है बालिकाओं की आवाज की शक्ति और भविष्य के लिए दृष्टि से प्रेरित तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता और सतत आशा दोनों को व्यक्त करता है। यह कहता है कि बालिकाएं फ्यूचर में कुछ भी कर सकती है आपके लिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना यह है कि उनके लिए सोचना है, उनके लिए योजनाएं निर्मित करनी है और उनके लिए जो आपकी सोच है उसे बदलना होगा। उनके लिए अच्छी सोच बनानी पड़ेगी, उन्हें अवसर देना है। वो बेचारगी के लिए नहीं, अवसर की मोहताज है।
उन्हें आप अवसर दीजिए, आपसे आगे निकल कर दिखाएगी। दोस्तों जानते हैं आज की लड़कियों की पीढ़ी जलवायु संघर्ष, गरीबी और मानवाधिकार और लैंगिक समानता के लिए कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों पर पड़ने वाले वैश्विक संकटों में असमान रूप से प्रभावित है। लैंगिक असमानता है दोस्तों, उनके लिए पढ़ाई के लिए भी असमान अवसर नहीं है। मैंने क्या कहा, उसको अवसर दीजिए आप। यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। दिवस तब मनाया जाता है कि हम उसे एक अलग ही कैटेगरी में रखते हैं। हमें अलग कैटेगरी नहीं बनानी है बालिकाओं के लिए, हमें समाज का एक अभिन्न अंग बनाकर उसका विकास करने की दिशा में सोच रखनी है दोस्तों। तभी हम पूरे देश का विकास, पूरे विश्व का विकास कर पाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, न कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत सी लड़कियों को अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। लड़कियां हैं, क्या करना है, पढ़ा लिखा कर अगले घर जाकर चूल्हा चाकी तो करना है। तो आप यहां सम्मान नहीं देंगे तो कौन वहां देगा, सोचिए ना जरा दोस्तों। जिससे उनके विकल्पों पर प्रतिबंध लगता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जबकि दोस्तों एक बात बता दूं, जो बेटे हैं वो माता पिता को वृद्ध अवस्था में वृद्धाश्रम के हवाले करके आते हैं, और वही उनकी बेटी जो है उनको वृद्धाश्रम से लाकर उनका जीवन संवारती है। दोस्तों कौन सी, आप खुद निर्णय लें और कमेंट में डालकर लिखें कि आपने क्या अनुभव किया है अपनी लाइफ में बेटी और बेटी के बारे में, जरूर बताएंगे दोस्तों। फिर भी हाल ही में के विश्लेषण से पता चलता है कि लड़कियों ने न केवल संकट का सामना करने में साहसी बनी है, बल्कि भविष्य के लिए आशावान भी है। वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है कोई भी कदम उठाने से। कल्पना चावला, कभी सुना था, कभी सोचा था कि ऐसी भी एक भारतीय लड़की जो इंटरनेशनल, जो हमारा सूरज है उसके ऊपर अपना नाम अंकित करेगी, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत का नाम अंकित कर देगी। सुनीता विलियम्स, ऐसे बहुत से लाखों नाम होंगे, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल जी, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई, पता नहीं कितने ऐसे नाम है, पद्मावती, कितने नाम गिनाऊं, जिन बालिकाओं ने कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे साहसिक कार्य किए जिनको व्यक्ति करने से दो बार पहले सोचता है। फिर हम कहते हैं हे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंख में पानी। अरे पानी दिया किसने आंख में, ये तो सोचिए। वही बालिका एक दिन मां बनेगी, बहन बनेगी, बेटी बनेगी। फिर क्या आपने सोचा है कभी कि आपके साथ ऐसा किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? उसका क्या लड़की होना ही दुर्भाग्य है? दोस्तों आगे जानिएगा। हर दिन एक ऐसी दुनिया की कल्पना को साकार कराने के लिए कदम उठाती है जिसमें सभी लड़कियों को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। दोस्तों खुद के लिए नहीं लड़ती है, वो पूरे विश्व के लिए लड़ती है। दोस्तों मां के बारे में, बहन, बेटी, सबके रूप में समाज की सेवा कर रही है। और दोस्तों हम क्या देते हैं, तुम्हें यह अधिकार नहीं है, उनके अधिकारों को सीमित करते हैं, उनके अधिकारों को हनन करने के लिए हम पुरुष प्रधान समाज बड़ा दम भरते हैं। यह हकीकत है दोस्तों। इसके अलावा लड़कियां केवल अपने सपने को साकार नहीं करती है, उन्हें ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो उनकी जरूरतों को सुने और उनका जवाब दे, उनको सकारात्मक सहयोग करे। दोस्तों सही समर्थन, संसाधन और अवसरों के साथ दुनिया की 1.1 बिलियन से ज्यादा लड़कियों की क्षमता असीम है। और जब लड़कियां नेतृत्व करती है तो इसका प्रभाव तत्काल और व्यापक होता है, क्योंकि उनकी सोच विस्तृत है, संकुचित नहीं है। आप देख लीजिए, मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां शैलपुत्री, अभी हमने नवरात्रि मनाई है। आपने देखा होगा परम क्लास सेट पे जितने भी वीडियो है उन्हें मैंने एक ही बात कही है, जितनी भी हमें जरूरतें पड़ी है, चाहे शक्ति हो, चाहे हमें सांत्वना हो, चाहे हमें शिक्षा हो, किसी भी तरह की जरूरत हो, चाहे हमें धन की जरूरत हो, सभी देवियां हैं। देवता कौन से बताइए ना मेरे को जरा एक बार। फिर भी हम नवरात्रा तो करते हैं, लेकिन बालिकाओं के बारे में हमारी सोच हीन नहीं, बहुत ही कुत्सित है। हमारे मन में जब तक बालिकाओं के प्रति सम्मान नहीं होगा, यह नवरात्रि जैसे ढोंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और विजयदशमी वो तो कभी मनाना भी नहीं, यदि आपके दिमाग में
कुत्सित विचार है बालिकाओं के प्रति, तो कभी, मैं तो कह रहा हूं विजयदशमी नहीं बनानी आपको। यदि आप सच्चे राम बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं तभी आप विजयदशमी मनाएं। दोस्तों, जब लड़कियां नेतृत्व करती हैं तो इसका व्यापक प्रभाव होता है। परिवार, समुदाय, अर्थव्यवस्थाएं सभी मजबूत होती हैं और हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है, क्योंकि कहा गया है कि यदि आप एक बच्ची का सम्मान करते हैं, उसे अधिकार देते हैं, तो उसकी कई पीढ़ियां उज्जवल होती हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम लड़कियों की बात सुने, ऐसे सिद्ध समाधानों में निवेश करें जो भविष्य की और प्रगति को गति दे, जिसमें हर लड़की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करे और यह दिखाए कि देखिए मेरे को अधिकार देने से यह हुआ है। दोस्तों, अब किशोरियों के लिए 5 परिवर्तनकारी समाधान क्या है। शायद आपको नहीं मालूम है कि लड़कियों में निवेश करना न केवल उनके लिए सही काम है, बल्कि यह उनके परिवारों, समुदायों और पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, किशोर लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के युवाओं की प्राथमिकता के आधार पर भागीदारी में निहित 5 प्रमुख समाधान हैं जो लड़कियों के जीवन को बदल सकते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। उनको हम जानेंगे, पर उससे पहले हम पृष्ठभूमि को तो जान लें कि बालिका दिवस मनाया क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से बीजिंग घोषणा पत्र पर कार्यवाही के लिए मंच को अपनाया। न केवल महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के अब तक का सबसे प्रगतिशील खाका तैयार किया। बीजिंग घोषणा पत्र लड़कियों के अधिकारों को विशेष रूप से अधिकार देने वाला पहला घोषणा पत्र है। दोस्तों, 19 सितंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 66/170 को पारित कर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया, ताकि लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को मान्यता दी जा सके कि नहीं, सही में बालिकाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वो अधिकारों से वंचित हो रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है और ध्यान केंद्रित करने की गुजारिश करता है। किशोरियों को न केवल इन महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान बल्कि परिपक्व होने पर भी सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार है। यदि किशोरावस्था के दौरान प्रभावी ढंग से समर्थन किया जाए तो लड़कियों में दुनिया को बदलने की क्षमता है। आज की सशक्त लड़कियों के रूप में और कल की कार्यकर्ता, मां, उद्यमी, सलाहकार, परिवार की मुखिया और राजनीति नेता के रूप में भी वह अपनी अव्वल भागीदारी निभा सकती है। किशोरियों की शक्ति को साकार करने में निवेश आज उनके अधिकारों को कायम रखता है, साथ ही एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध भविष्य का वादा करता है, जिसमें आदि मानवता, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक विकास, बीमारी की रोकथाम और वैश्विक स्थिरता की समस्या को हल करने में समान भागीदार है। दोस्तों, यदि आपने उसे अधिकार दिया तो कंधे से कंधा मिलाकर और उससे भी ज्यादा आपसे आगे निकलकर दिखाने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से, बस यही वजह है कि हम उन्हें अधिकार देना नहीं चाहते कि ये आगे निकल गई तो हमें कौन पूछेगा। इस नीच सोच को, इस हीन भावना को ही निकाल कर फेंकना है, तभी हम सामाजिक विकास में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास कर पाएंगे। दोस्तों, लड़कियां रूढ़िवादिता और बहिष्कार द्वारा उत्पन्न सीमा और अवरोधों को तोड़ रही है। आज ऐसा नहीं है। जिन बच्चों को हमने हाथ में शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें अधिकारों की फेहरिस्त सौंपी, उसके बाद वो अपना सब कुछ करके दिखा रही है कि ये किया जा सकता है, जिनमें विकलांग बच्चों और हास्य के समुदाय में रहने वाले बच्चों के लिए निर्देशित सीमाएं और अवरोध भी शामिल है। दोस्तों, उद्यमी, नवोन्मेषक और वैश्विक आंदोलनों के आरंभकर्ता के रूप में लड़कियां एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रही है जो उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगी। दोस्तों, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और उसके 17 सतत विकास लक्ष्य जिन्हें 2015 में विश्व नेताओं द्वारा अपनाया गया था, प्रगति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करते हैं
जो टिकाऊ है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करना 17 लक्ष्यों में से प्रत्येक का अभिन्न अंग है। चाहे कोई भी विकास का वो अंग हो, उसमें महिला और बालिकाओं को जोड़ना अत्यंत जरूरी, आवश्यक और अनिवार्य है यदि हम सतत विकास की बात करते हैं तो। दोस्तों, सभी लक्ष्यों में महिलाओं और खासकर बालिकाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करके ही हम न्याय और समावेशन, सभी के लिए काम आने वाली अर्थव्यवस्था और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे साझा पर्यावरण को बनाए रख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, सतत विकास हम नहीं अपना पाएंगे। अब दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमें उनके बारे में अब जानना है। क्या बातें हैं, क्या हकीकत है, वो जान लेते हैं, जो कि हमारे आंखें खोलने के लिए बेताब है। दोस्तों, जान लेते हैं। आज भी लगभग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और सोचिएगा कि आपका क्या दायित्व बनता है इस संबंध में। आज भी लगभग 5 में से एक लड़की निम्न माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही है। 8वीं तक की मिडिल क्लास भी पूरी नहीं कर पाती है 5 में से एक लड़की, तथा लगभग 10 में से 4 लड़कियां उच्च माध्यमिक शिक्षा की भी पूरी नहीं कर पा रही, क्योंकि कहा जाता है कि लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ने जाना। लेकिन दोस्तों, एक चीज बताइए, एक बात बताइए मेरे घर में, क्या लड़कियों के माँ है, माँ को छोड़ दीजिए, बाप, दादा, भाई, क्या ये लड़के नहीं है? मामा, क्या वो लड़का नहीं है? क्या उसमें सोच नहीं है कि किससे क्या रिश्ता रखना है, किससे क्या बात करनी है? क्योंकि हम उसे हीन बना रहे हैं। दोस्तों, यदि उसने एक दिन ये आगे आकर कह दिया कि आप भी तो लड़के हो, आप भी तो पुरुष हो, फिर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए मेरे को। उसे अपना अधिकार दे दीजिए, ज्यादा यही रहेगा दोस्तों। अब मैं दूसरी बात बता दूं, निम्न आय वाले देशों में लगभग 90% किशोरियां और युवतियां इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है। दोस्तों, ये स्थिति है, नहीं कर पा रही है, कर पा रही नहीं है, ये स्थिति है दोस्तों। क्या करें, क्यों? उन्हें अधिकार नहीं है। इंटरनेट पे क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, जबकि उनके पुरुष साथियों के ऑनलाइन होने की संभावना दोगुनी है। उन्हीं की उम्र के लड़के, जो बालक हैं, जो आज पथभ्रष्ट हो चुके हैं, वह इंटरनेट का यूज करने उनसे दोगुनी संख्या में है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर 5 से लेकर 14 वर्ष की जो लड़के हैं, वो समान आयु के लड़कों की तुलना में प्रतिदिन अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों में 160 मिलियन घंटे खर्च कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी वो अव्वल रहकर दिखाती है। देखिए कितनी क्षमता है उनमें काम करने की, कितनी क्षमता है विकास की, जबकि एक वही उन्हीं की उम्र का बालक 24 घंटे इंटरनेट के अंदर लगा रहता है, और जब परिणाम आता है तो 0 अंतर आप खुद देखिएगा दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं। किशोर में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में से 4 में से 3 मामले किशोरियों से संबंधित है दोस्तों। 15 से 19 वर्ष की आयु वाली लगभग 4 में से 1 विवाहित साथी किशोर लड़की ने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपने अंतरंग साथी से शारीरिक यौन हिंसा का अनुभव किया है। यह बड़ी विडंबना है दोस्तों, कितनी सोच का विषय, कितनी घृणित चीज है। क्या आप खुद को राम कहते हैं? अरे रावण दहन करने से रावण के सामने 10 बुराइयां दिखाई तो दे रही थी, कम से कम वो आपके अंदर छुपी और दिखाई भी नहीं देती है कि आप किस तरह के रावण हैं, किस तरह के आपके अंदर विभत्सता फैली है, कुत्सितता है, प्रदूषण है आपके अंदर, सोच का प्रदूषण। दोस्तों, ये पर्यावरण प्रदूषण तो दूर हो सकता है, लेकिन सोच का प्रदूषण कभी दूर नहीं हो सकता। वैचारिक प्रदूषण कभी दूर नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। दोस्तों, राम वो थे जिन्होंने सीता को पता लगाने के लिए, सीता के लिए उन्हें 14 युद्ध किया रावण से और उस पर विजय प्राप्त की। वो होता है राम। आज पता नहीं हमारे विचार क्या है दोस्तों। कोविड-19 महामारी से पहले भी अगले दशक में 100 मिलियन लड़कियों के बाल विवाह का खतरा था, और अब अगले 10 वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लड़कियों के बाल विवाह का खतरा होगा। ये हमारी सोच है दोस्तों। अब है उज्जवल भविष्य के लड़कियों को सशक्त बनाना। ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस दिन का लक्ष्य होना चाहिए। 11 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर में
लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह दिन युवा लड़कियों के लिए लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिन एक ऐसा वातावरण बनाने की याद दिलाता है जहां लड़कियां आगे बढ़ सके और आत्मविश्वास के साथ यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने भविष्य को आकार देने और नेतृत्व करने के लिए अपनी क्षमता, विश्वास, आत्मविश्वास के उपकरणों से लैस है। दोस्तों, इसमें हमें जानने की जरूरत यह है कि जो ये थीम है 2024 की, तो उसका मतलब क्या? भविष्य के लड़कियों का दृष्टिकोण यूनिसेफ द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि लड़कियां अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आशावादी बनी हुई है और बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर दिन दुनिया भर में लड़कियां एक ऐसे दृष्टिकोण के दिशा में काम कर रही है जिसमें उन्हें सुरक्षा और समानता और अधिकार मिले और सम्मान भी मिले, लेकिन वे उसे अकेले हासिल नहीं कर पाएगी। उन्हें सहयोगियों की जरूरत है, सरकारी समुदाय और व्यक्ति जो उनकी जरूरतों को सुने और उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, इनकी जरूरत है। दोस्तों, जब लड़कियों को सही संसाधनों और अवसरों के साथ समर्थन दिया जाता है तो उनकी क्षमता असीम होती है दोस्तों, और जब यह नेतृत्व करती है तो सकारात्मक प्रभाव उनके परिवारों, समुदायों और व्यवस्थाओं तक पर साफ दिखता है। बात आती है लड़कियों के अधिकारों की इतनी वकालत क्यों? दोस्तों, लड़की के रूप में जन्म लेने के साधारण तथ्य से किसी भविष्य का दायरा निर्धारित नहीं होना चाहिए कि लड़कियां कल क्या करेगी, क्यों पढ़ाना चाहिए। नहीं, समान अवसर देने चाहिए। दुर्भाग्य से दुनिया भर में लाखों लड़कियों के लिए उनका लिंग अभी भी उनकी पसंद को सीमित करता है। यह है चीज दोस्तों, उनके भविष्य को सीमित करता है और उन्हें बुनियादी अधिकारों से तो वंचित रखता ही है। लेकिन जन्म होगा तब होगा ना। लोग कन्याओं को भ्रूण में मार देते हैं, जो कि पशुता से भी ऊपर पहुंची हुई स्थिति है। दोस्तों, आंकड़े गंभीर तस्वीर पेश करते हैं और ये छवि दिखाते हैं कि हालांकि चुनौतियां इतनी भी बड़ी नहीं है कि इससे पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन जरूरत है तो दृढ़ निश्चय, विश्वास और दृढ़ता और निष्ठा का। सही पहल और सामूहिक प्रयासों से भविष्य की ओर तेजी से प्रगति करना संभव है, जहां हर लड़की को सफल होने के लिए जरूरी स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल उपलब्ध हो। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के लिए। भारत में क्या है, ये जो संविधान है उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या हम कर सकते हैं महिलाओं के लिए। लेकिन बात यह है कि भारतीय संविधान लैंगिक समानता के सिद्धांत को कायम रखता है। कहा गया है कि लैंगिक समानता रखनी है, लेकिन क्या यह है, इसे हम जान लेते हैं। यह न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को सदियों से चले आ रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार भी देता है। महिलाओं को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो उन्हें लिंग और लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। दोस्तों, वे कानून के तहत समान सुरक्षा की भी हकदार हैं और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने का हर नागरिक का कर्तव्य है और उन्हें अपमानजनक प्रथाओं से मुक्त करवाना हमारा दायित्व है। दोस्तों, महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ नीति से कहीं ज्यादा है, यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। दोस्तों, जो महिलाओं को आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में समान अवसरों का दावा करने की अनुमति देती है, हमें उन्हें अधिकार देने होंगे। वो छीने उससे पहले हम दे दें उनको अधिकार। दोस्तों, इसमें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह निर्णय लेने और बेहतर भविष्य के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता शामिल है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में बालिकाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। वह 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल संख्या 58.75 करोड़ दर्ज की गई है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने में उनके सशक्तिकरण और संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। आज स्थिति सुधरी है, जैसे हमारी सोच में परिवर्तन हुआ है वैसे हमारी स्थिति भी सुधरी है। उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना न केवल उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि समाज की समग्र उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विशेष रूप से लड़कियों के अधिकारों और अवसरों को पहचानना और उन्हें बनाए रखना अधिक न्याय संगत भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, भारत सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चालू की है, जिनको जानना अत्यंत आवश्यक है। जिसमें पहली है
बालिका समृद्धि योजना VSY। यह विशेष योजना भारत में लड़कियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जानी जाती है जिनके पास बुनियादी शिक्षा तक की पर्याप्त पहुंच नहीं है। BSY का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करना है, साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी विवाह योग्य आयु को बढ़ाना है। इसके अलावा यह योजना भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत लड़कियों को 3,000 से रुपए 1,000 के बीच की 300 से 1,000 के बीच की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रमुख पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि लड़की का जन्म 15 अगस्त 1997 और उसके बाद हुआ हो। दोस्तों कितनी बढ़िया योजना है कि आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट दे रही है आपको कि आप बच्चों को पढ़ाइए, बाकी हम देखेंगे। दूसरे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सबसे बड़ी बात तो यह बेटी को हम जन्म ही नहीं लेने दे रहे। कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं। हमारी जो ये प्रदूषित सोच है ना उसे हम दिखा रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं बालिकाओं के बारे में, हमें क्या सोच है हमारी। दोस्तों इसके लिए सरकार ये कह रही है आप डरो मत, बच्चों को जन्म लेने दो, उनको पढ़ाएंगे हम। तो क्या है दोस्तों, BBBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हरियाणा में की गई और किसने की? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लड़कियों के लिए इस शिक्षा का योजना का एक मुख्य उद्देश्य उन्हें बाल विवाह, गर्भपात और अन्य सामाजिक मुद्दों से बचाना है। दोस्तों यह योजना भारत में लड़कियों वाले परिवारों को संलग्न समग्र वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जानी जाती है और 10 वर्ष की कम की लड़कियां होनी चाहिए, उम्र है उसका। इसके अलावा लड़की का जन्म भारत में ही होना चाहिए और परिवार के पास लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता भी होना चाहिए। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY दहेज भारत में लड़कियों के खिलाफ लैंगिक भेदभाव से जुड़े प्रमुख मुद्दों में से एक है। दहेज प्रथा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए SSY योजना इन लड़कियों के लिए बचत कार्यक्रम प्रदान करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम की मदद से भारतीय माता पिता भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में बैंक खाता खोलकर या डाकघर में अपना खाता खोलकर अपनी लड़की की शादी और शिक्षा के खर्चों को अलग रख सकते हैं। हालांकि इस योजना के लिए पात्र होने के लिए लड़कियां या तो नवजात हो या 10 वर्ष से कम उम्र की हो। अब हम जानते हैं CBSE उड़ान योजना क्या है। CBSE एग्जाम जो होता है, CBSE सेंटर है, उनको क्या दे रहा है। CBSE उड़ान योजना भारत में लड़कियों के लिए एक लोकप्रिय कल्याणकारी योजना है जिसे लड़कियों के लिए स्कूल नामांकन बढ़ाने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। यह योजना भारत में वंचित छात्राओं को मार्गदर्शन सहायता प्रदान करती है, साथ ही उन्हें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करती है, जिससे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और दोस्तों इसकी पात्रता का मापदंड है केवल 11वीं और 12वीं क्लास की छात्राओं के लिए योजनाएं हैं जिसमें सारे विषय शामिल है, जिसमें भौतिकी, रसायन, गणित, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है उनके लिए है। कई अन्य मापदंड है, जैसे छात्रों द्वारा कक्षा में 10 में कुल अंक 70% होना चाहिए, उनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, इसके लिए भी उन्हें 11 से 18 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें लड़कियों को है वो वित्त पोषण का भी सहायता दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों की प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना क्या है। देखिए माध्यमिक शिक्षा कई बच्चियां तो वहां तक ही नहीं पहुंच पाती, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है, मई 2018 में शुरू की गई और उसके लिए खासकर उन लड़कियों को जो 14 से 18 वर्ष की उम्र की है और 8वीं कक्षा पूरी कर चुकी है, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों के खाते में कुल 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जिसे 18 वर्ष की आयु होने पर ब्याज राशि के साथ निकाला जा सकता है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाएंगे हम, आप डरिए मत, बच्चियों को जन्म लेने दें। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए लड़कियों की आयु 31 मार्च 2 तक 16 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम, यदि वे अपनी माध्यमिक शिक्षा जारी रखना चाहती है। इसके अलावा भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी और बच्चियों की 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है, चाहे वे किसी भी समुदाय से हो। इसके अलावा स्कूलों को स्थापित करने के लिए 5 लाख का एक मुफ्त अनुदान भी दिया जाता है और इसके नियमित संचालन के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो टीचर्स को रखकर, अध्यापकों को रखकर बच्चों की शिक्षा को वो है सुनिश्चित कर सके।
उसके बाद हम 3 योजनाएं पर महत्वपूर्ण जानेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये क्या है, 2009 में ये शुरू की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि माध्यमिक शिक्षा तक बच्चियां कम से कम शिक्षा तो ग्रहण करें। आगे की योजनाएं और है, लेकिन यहां तक तो लाए बच्चियों को। तो उनके लिए क्या किया गया, इस योजना में लड़कियों के अनुकूल प्रथाओं नीतियों को आगे बढ़ाना है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी लड़की को अनुकरणीय शिक्षा प्राप्त करने से कोई समस्या ना हो। इसके अलावा इस योजना के प्रमुख घटक में माध्यमिक शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बहुत कुछ असमानताओं को दूर करना शामिल है। कुल मिलाकर यह योजना भारत में लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए अवश्य है। धनलक्ष्मी योजना, यह भारत सरकार द्वारा लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई एक मौद्रिक योजना है, जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे उनकी भलाई को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह योजना 2008 में लागू की गई, लेकिन 2018 में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान इस योजना ने शिक्षा और बाल विवाह के मुद्दों को संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की जो अंतिम योजना हम उसे पढ़ लेते हैं, वो जानते हैं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना क्या है। दोस्तों, इसमें यह है जितनी भी लड़कियां हैं अनुसूचित जाति जनजाति की, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता, ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो व्यवसायिक दृष्टि से काम करने वाले, वास्तुकला है, इंजीनियरिंग है, कानून है, शिक्षा है, कोई भी क्षेत्र हो, वो उसमें आगे महारत हासिल कर सके। इसके लिए दोस्तों आज एक हमने जान तो सब कुछ लिया, लेकिन वकालत करने वाली बात यह है, हमें सोचना होगा कि एक लड़की का जीवन वैसे शुरू होना चाहिए जैसे हर जीवन का होना चाहिए। कि कहने का मतलब यह है कि बालक और बालिका दोनों को आगे बढ़ने के समग्र और समान अवसर होने चाहिए, तभी जाकर हम राम बनने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। और रावण रूपी जो हमारी 10 बुराइयां हैं, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या को जन्म नहीं देना, ये आगे क्या करेगी, नहीं पढ़ाना, ये सारी दूर हो पाएगी। दोस्तों, एक खुली किताब की तरह है जिसमें वह अपनी कहानी खुद लिखती है, लेकिन जिस क्षण से एक लड़की अपनी पहली सांस लेती है, वह पहले से नुकसान में होती है कि इसे जिंदा रखा जाए या नहीं रखा जाए। दोस्तों, क्योंकि वह एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी। दोस्तों, अधिकारों, समानताओं और समावेशन की वकालत करने वाली युवा आवाजों की पुकार पर ध्यान देने का समय आ गया दोस्तों। लेकिन जाते जाते मैं कुछ कविताएं हैं एक कवि की, उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। और वो कविताएं कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि हमारे कवि हुए हैं अजय हाशमी। उन्होंने कहा है, कम नहीं कन्या गुणों के मामले में, कम नहीं गुणों के मामले में कन्या, जन्म कन्या का सहज सम्मान समझो, वह विधाता का शुभम वरदान समझो, वह विधाता का शुभम वरदान समझो। कम नहीं कन्या गुणों के मामले में, उसकी गुणों को, यशोगान को समझो। जन्मी बिटिया यानी बरकत का खजाना है, साथ लाई बात इंसान समझो। बालिका की परवरिश सौभाग्य मानो, उसकी यश गाथा को अपना मान समझो। न तो उनको बाज नाई फांस समझो, बंद कर दो भ्रूण हत्या बेटियों की, बंद कर दो भ्रूण हत्या बेटियों की। न तो उसको बोझ ना ही फांस समझो, है गुजारिश बेटियों को खास समझो। कामयाबी की कहानी कह रही है, कामयाबी की कहानी बेटियां कह रही है, रच रही है बेटियां इतिहास समझो। बादशाहों तक ने खुद अंतिम समय में बेटियों पर ही विश्वास समझो। बंद कर दो भ्रूण हत्या बेटियों की, वरना कुदरत के कहर को के पास समझो। बंद कर दो भ्रूण हत्या बेटियों की, वरना कुदरत के कहर को पास समझो। बेटियां रक्षा कवच है, बेटियां तो शुभ शकुन की टिकलियां हैं, बेटियां आंखों की दृष्टि पुतलियां हैं। घर अगर तन है तो इस तन के हृदय की बेटियां रक्षा कवची पसलियां हैं। दोस्तों, द्वार पे हल्दी से मां के साथ मिलकर बेटियां शुभ लाभ लिखती है अंगुलियां हैं। दोस्तों, परिवार की पूनी का कटता सूत जिन पर बेटियां तो दरअसल वे तकलियां हैं। दोस्तों, स्नेह के रिश्तों से घर को बांधती है बेटियां, सद्भाव गुंथित सूतलियां हैं। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पाउन दुआएं हैं। तो दोस्तों, क्यों न हम आज उनको उनका अधिकार देने के लिए हम एक प्रण लें कि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस नहीं मनाएं, एक दिवस नहीं मनाएं उनके लिए, हम रोज
ये कोशिश करें, हर रोज एक दिवस है उनके लिए, एक दिवाली का दिवस है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो अकेली कहीं भी किसी भी गली से अंधकार में रात को 12 बजे में निकल सके, ऐसा हम प्रण ले कि वो भी पढ़े लिखे और समाज में हर कुछ करने को उसको अधिकार दे। तब हम खुद को राम कहने के लायक हैं। यदि आज हमें कोई रावण कहते कितना गुस्सा आता है, लेकिन हकीकत है कि हम रावण ही है, क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, बालिकाओं के प्रति जो सोच है, वो हम नहीं मार पाएंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी याद आती है, बता सकता हूं मैं आपको, चलिए बता देता हूं कि एक बार रावण ने एक लड़की को बचाया। कैसे बचाया आप सोच रहे होंगे। दोस्तों एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी जो मैंने खुद ने लिखी है वो बता रहा हूं। एक बार एक लड़की भाग रही थी, उसके पीछे गुंडे थे जो रामायण में राम का रोल निभा रहे थे, लेकिन असलियत में क्या था असलियत बताता हूं मैं। वो गांव के गुंडे थे, लेकिन ठीक है स्टेज पर अच्छा रोल करते थे, इसलिए उनको राम का रोल मिल गया। लेकिन दोस्तों भागते भागते लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक रावण का पुतला था, उसमें जाकर घुस गई। काश मैं बच जाऊं इनके दरिंदों के चंगुल से। और दोस्तों उन्होंने सोचा कि लड़की भाग गई तो वो चले गए। दोस्तों एक बात बताइएगा मेरे को, सोचिएगा जरा कि वो रावण का पुतला सही था या वो भेड़िए रूपी जो खुद को राम कहते थे वो सही थे। सोचिएगा जरा और अपना एक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यही मेरी आशा है और एक विश्वास है कि आप सभी आज के इस वीडियो को सुनकर बालिकाओं के प्रति आपकी सोच को पवित्र, पावन और शुभ्र बना पाएंगे। तभी हम नवरात्रि की अच्छी खुशियां मना पाएंगे, खुशियों को समापन कर पाएंगे। नवरात्रा को ढंग से हम बालिकाओं को उनका अधिकार दे पाए। तो दोस्तों इसी के साथ परम क्लासेज आपसे विदा लेता, कल नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।